some years afterwards. There was no people, it was because the king was not there, queen was not there, so there was a lot of anarchy in France. So what happened afterwards? Then one Napoleon Bonaparte came to power and he established his rule in France. And he came to power roughly around 1799 AD. Okay, he came to power in 1799 AD, and he was a very ambitious king. Oh, he was a very ambitious king. He was not only interested in ruling France, but he wanted to expand his powers throughout Europe as such. So he had eyes on different countries as well of Europe. So he wanted to expand his control towards the rest of Europe also. Keeping that thing in mind, he fought a lot of wars to expand his control throughout the Europe. And in that process, the people of Europe helped him because they were tired of the conservative regimes of Europe which were there. So they were not happy with them. So they welcomed somebody who was Napoleon, because he was a liberal. Although he was a dictator, but he was very liberal in his approach. So in 1804 also he came up with some code of conduct as such, in which that is called Napoleonic Code, in which he gave some liberty to the people as such, which was very much welcomed by other countries, by other nations of Europe as well. So this continued, and he had his powers began to increase, and all the other powers, conservative powers, became very apprehensive regarding Napoleon, because they knew that if it continues, they will be out of their power, they will not stay in the power. So what happened? They formed an alliance against Napoleon. Okay, and ultimately there was a war between the alliance and Napoleon. And what was that war called? Battle of Waterloo, which happened in 1815. And in that war, Napoleon was defeated by the combined alliance, conservative alliance. Okay. And after the defeat of Napoleon, the conservative alliance wanted that somebody like Napoleon should not again come in Europe, because they were terrified with him. So they decided that they will have something which will not enable anybody like Napoleon to come again. So they met in Vienna in 1815. Nowadays, capital of Austria is Vienna. They met in 1815 in Vienna under the leadership of Mr. Metternich. Metternich was the Chancellor of Vienna at that point of time. All the powers who were responsible for defeating Napoleon came together in Vienna, and they decided an agreement how they will distribute the territories of Napoleon, which they had won after the defeat of Napoleon. They decided to distribute, and they tried to curtail the powers of France, because different powers got territories surrounding France. So there was no room for France to expand. Okay, so 1815. 1815, this Vienna Pact came into force. So the conservatives again came into power. The Bourbon dynasty, which was ruling at the time before the French Revolution, was restored in France. All the conservative powers who had lost their territories because of Napoleon were restored in their respective territories.
So that thing happened, and later now we will come to another important point which happened. So there was in 1848, people were talking, in Germany people were talking about how monarchy can be curtailed and how people can get more democratic as such. So there, how parliament can come into force. So in 1848, there was a parliament which was established, and that parliament was made up of middle class people. Around 750, more than 700 people marched, and they went to a church, and there they formed the parliament, but that was not having the approval of the king of Prussia, and that was not having the approval of the aristocrats. So what happened was that that parliament was not a success because they were made up of middle class people, and they looked after their own interest. They were not interested in aristocrats, they were not interested in the monarchy, they were not interested even with lower class people who were peasants, etc. So this parliament became a failure as such, and they wanted to unify Germany, but it was not, it could not happen, and they brought a proposal to the king that we will pass the laws, you will just sign and approve it, which was not acceptable to the king also. So he called the army and disbanded the parliament. So that thing that was a failure, and all these things were watched by Otto von Bismarck, who was the very instrumental in unifying Germany. He found out that the middle class cannot do the unification process unless the king and army is involved. They will not be able to unify the entire Germany as such. So he planned accordingly. He fought some wars with the neighboring countries, and he was able to unify the Germany by 1874. On 18th January 1871, they assembled in the Palace of Versailles, and where they nominated the king of Prussia as the king of Germany. So Germany got unified in 1871. Now similarly, we will go to Italy. Italy was also a set of different states, about 7 states, small states, out of which the prominent, you want to ask something? 1871. Precisely on 18th January, because they assembled on 18th January in the Palace of Versailles. Then when this happened, then we are talking about Italy. Italy was also a set of states which was 7 in number, and out of that one was the prominent one. Its name was Sardinia Piedmont. Sardinia Piedmont. So that state was the major state, and the rest of the states were smaller states with different sets of controls. So there were 3 types of people who were instrumental in, 3 people who were instrumental in unification, who played their role in unification of Italy. First one was Mazzini. Mazzini was the person who went underground after Napoleon got defeated, and the conservatives went after the liberals. जब कंजर्वेटिव पावर में आ गए थे तो वो लिबरल्स को प्रोसिक्यूट करने लगे, उनको पकड़ने लगे, मारने लगे, तो वो काफी लोग अंडरग्राउंड हो गए. तो उसने फिर क्या किया, he went underground and he found
organization of like-minded young people within the country as well as outside the country also. His name was Mazzini. He had that very lot of motivation powers, and he had got good leadership skills. He was ultimately caught and was deported also. Next one was Count Cavour. Count Cavour was another person who was instrumental in the unification of Italy. Count Cavour was neither a Democrat nor a liberal, but he was basically from French origin, and he took the help of France to liberate a lot of parts of Italy. Next was Garibaldi. Garibaldi was another person who had played a very important role for the unification of Italy. He formed an army under him. Around 30,000 people. He made an army. That army was called Red Shirts. What was called? Red Shirts. So though he freed the southern part of Italy and also tried to get control over Rome also, which ultimately he succeeded in 1860. So all these efforts resulted in the unification of Italy, and in 1871 again, just like Germany, they nominated Victor Emmanuel II as the King of Italy. Victor Emmanuel II as the King of Italy. So that way, Italy also became a unified country. आया समझ में कि नहीं आया? And Germany was King of Prussia was Kaiser William I. So he was also nominated as the King of Germany. He was the King of Prussia. Okay. Now this is the overview which we did. Now I will go to the Indian National Movement. Okay. So Indian National Movement, which you in your course is mainly concerned with the period when Mahatma Gandhi had returned from South Africa. You know Mahatma Gandhi had gone to South Africa in relation to his practice, and as he was a lawyer also. So that period, Mahatma Gandhi returned to India on January 1915. Mahatma Gandhi returned to India in January 1915. So before that, most of the activities which were done, because Indian National Congress had formed in 1885. You might be knowing that, na? Indian National Congress was formed by a retired British officer A.O. Hume in 1885. So this period of 30 years which was there, it was mostly led by the moderates, like the leaders were Dadabhai Naoroji, Firoz Shah Mehta. They were the leaders who were having they were very humble in their approach towards the British. They thought that British are very good rulers, and they will, whatever modest requests they are having, they will fulfill that. वो एक मामूली चीजें लेके जाते थे उनके पास, और कई बार वो मानी भी जाती थी, because that was not a they were not very extremist in their approach. They were very moderates. But by the time 1915 Mahatma Gandhi returned, he decided that he will go for not in a violent way, but he will do it in a different way, like Satyagrah, in which he will use truth and non-violence as the weapons to fight against the British. And there was another wing also which was called as extremists, or the Garam Dal also usko kehte hain. So because there was some difference of opinion between moderates and extremists, they went for a split in 1907 during the Surat session of the Congress, because they had difference of opinion. वो कहते थे हमको बाहर फेंक देंगे अंग्रेजों को 1907. So that thing was, by 1915 when Mahatma Gandhi first studied, he did not just jump into the freedom struggle. He just first found out how he will. First he traveled throughout the country.
because he wanted to know what is the ground reality, because he had come to India after 22 years. So he was not aware about what was happening in the country at that point of time. So once Mahatma Gandhi came, he traveled throughout the country. Then he started Satyagraha movements in Champaran. Champaran is in Bihar, where there was people were forced by the British to go for indigo farming. Indigo farming was helping their textile industry in the England. Okay, so that indigo farming which was there, they were forced, and it was also it was creating a loss of fertility in the soil also. बंजर हो जाती थी जमीन इंडिगो करने से, और वहां पे उनको जरूरत थी उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कलर करने के लिए, कपड़ों को इंडिगो के लिए जबरदस्ती करते थे. They were not even allowed to grow the staple crops also, staple food crops. They were forced to do indigo. So he fought against them. Then in the same year, in 1917, he launched a satyagraha in Kheda, where there was, Kheda is in Gujarat. It was erstwhile Bombay state. पहले उसको Bombay state कहा जाता था. तो खेड़ा में क्या हुआ? He wanted that, he also fought for the peasants who were taxed very heavily because of crop failure and plague. There was a plague which broke out in that year in Kheda, and people had got affected, but the government did not reduce the taxes of the farmers. So he fought a satyagraha for them also. So in this taxes, yes. In Kheda it was taxes. In Champaran was against the indigo farming which was there. It was forced indigo farming for the farmers. So he decided that he fought for them in both, and he also fought for the mill workers in Ahmedabad. Ahmedabad was called a Manchester of India. Why it was called Manchester of India? मैनचेस्टर किसके लिए फेमस है? मैनचेस्टर एक्चुअली वाज द टेक्सटाइल हब ऑफ इंग्लैंड. मैनचेस्टर वाज द टेक्सटाइल, वहां पे कॉटन मिल्स बहुत ज्यादा थी. तो वही चीज अहमदाबाद में भी रेप्लिकेट हुई थी बाद में. बहुत सारी अहमदाबाद में ये कॉटन मिल्स थी. तो मिल वर्कर्स के लिए भी महात्मा गांधी ने उनको पगार बराबर नहीं दे रहे थे. दे वर नॉट गिवन ए प्रॉपर सैलरी. दे वर डूइंग ओवरवर्क. दे वर नॉट पेड ओवर टाइम आल्सो. सो ऑल दीस थिंग्स he fought for them. So he mainly fought for three areas in the start: Champaran, Kheda and Ahmedabad. मिल वर्कर्स के लिए फाइट किया था वहां पे, फॉर देयर सैलरीज, फॉर देयर वेलफेयर एंड एवरीथिंग. उनका था चंपारण में था फार्मर्स के लिए, बट इंडिगो फोर्स के लिए था, फोर्स फार्मिंग ऑफ इंडिगो. और आपका खेड़ा में था हेवी टैक्सेस एंड प्लेग. पीपल वर नॉट इन ए पोजीशन टू पे दोस हेवी टैक्सेस. ठीक है. फिर क्या हुआ? You know that the first world war happened between 1914 and 1918. You know that. So what happened was that in that war, British was fighting with Turkey. They were fighting एक दूसरे से लड़ रहे थे, and in that war Turkey lost to British. Okay. And Turkey was considered to be the seat of Islamic religion at that point of time. और वहां के किंग को कहते थे खलीफा. क्या कहते थे? Who was considered to be a political and religious leader of the Muslims. So what happened was that they lost, and he was forced to sign a treaty which was not favorable to him. They had to compromise on so many things, because normally what happened पुराने जमाने में या पहले भी जब हार जाते थे और कोई ट्रीटी होती थी वो एडवर्स होती थी हारने वाले के लिए. बहुत कुछ उसको सील्ड भी करना था, बहुत सारी चीजें उसको कॉम्प्रोमाइज भी करनी थी. वो चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई दो भाइयों का. उनको कहते थे अली ब्रदर्स. क्या कहते थे?
अली ब्रदर्स। तो वो दो भाई थे, तो उनको लगा उनकी हमारा रिलीजन खतरे में है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए, अवर खलीफा इज इन ट्रबल, he is made to go for a treaty which is not favorable to him. So they raised their voice and they tried to mobilize the Muslim brothers in India to fight against the British. So they started a movement called the खिलाफियत movement. क्या कहते थे? खिलाफियत movement उन्होंने शुरू कर दी। तो गांधी जी was watching the things very closely. He thought कि unless and until he will not get the Muslim support, he will not be able to have a nationwide movement against the British. आया समझ में? अगर वो ये मानते थे कि अगर मैं सिर्फ हिंदू लोगों को ही लेके चलूंगा तो बात बनने वाली नहीं है, बिकॉज मुस्लिम्स वेर a sizable population throughout the country, so they cannot be kept, they could not be kept aloof from the movement. So what he did, he supported that movement wholeheartedly, Khilafiyat movement, and he also at the same time in 1920, early 1920, he started the non-cooperation movement. Non-cooperation movement he started in 1920. So, which had the support of both Hindus and Muslims because of the Khilafiyat movement, which he fully supported, and Hindus also because Mahatma Gandhi was an overall leader as such, so he got a nationwide support. So this movement became very successful. Gandhiji encouraged people to totally not to cooperate with the British in any way. So what he did was, he told them that please do not work for them, leave their jobs, don't pay taxes, don't go to schools, don't go to colleges, everything we have to totally, we don't have to cooperate with this government totally. If we do that successfully for a long period of time, it will break the back of British government and they will be forced to give freedom to us. So that was a big success everywhere. People were not, even people, he encouraged people not to buy the British goods, British clothes. So there were bonfires which were raised, which were created on the roads, and people would throw their British clothes in that. So that way total cooperation was they totally non-cooperated with the government as such. Got it? But he had also put a condition, Mahatma Gandhi, that we will base this movement on the basis of truth and non-violence. That should be the main ideology of this movement, and rest we will not cooperate with this government totally. So this movement continued successfully from 1920 to 1922, and it really paralyzed the British government. But there was an event which happened in 1922 which turned the tide of that non-cooperation movement. Do you know what was the event? कुछ पता है बेटा आपको? What was the event which turned the tide of the non-cooperation movement? नहीं. It was Chauri Chaura incident. Chauri Chaura is a place in the Gorakhpur district. So what happened was, there was some demonstration going on, but the police gave lathi charge to the people who were protesting, and the people got angry and they chased the policemen. So they ultimately went to their police station and locked themselves inside for their safety, because they thought they will be
beaten by them, or they might be killed by them because the crowd became violent. So what happened was, when they locked themselves inside the police station, there were around 22 policemen inside. So the crowd burnt that police station, and all those 22 policemen were burnt alive, and they died. So once that news came to Gandhiji, he immediately stopped that non-cooperation movement, which was at its peak at that point of time. It was February 1922. You got it? So once he called that, so that entire momentum of non-cooperation movement came to a halt, and the British got some respite, and they started persecuting the Indians, put them into jail. And नहीं, लोगों ने बर्न किया था. अब गांधी जी ने कंडीशन रखी थी कि हमारी मूवमेंट हमेशा नॉन वायलेंट होनी चाहिए. जैसे गांधी जी को पता चला कि हमारे लोगों ने ही इनको जलाया है, पुलिस वालों को, तो उन्होंने उस मूवमेंट को एकदम से ही बंद करवा दिया. तो वो सारा उस टाइम वो पीक पे था फरवरी 22 में. फिर उससे वो मोमेंटम टूट गया. तो अंग्रेजों को जो पैरालाइज हो गई थी गवर्नमेंट, उनको जान में जाना ही, उन्होंने अपने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया. ठीक है. So there was another event, another law which was passed by the British, Rowlatt Act. क्या होता है Rowlatt Act? For 2 years without any trial. Rowlatt Act कहता था कि हम किसी को भी जेल में डाल सकते शक के बिना पे, बिना किसी ट्रायल के. मतलब हम जेल में कब डालते हैं? जब जज ये कर देता है, जब जज सजा सुनाता है कि इसको 6 महीने के लिए डालो या 1 साल के लिए, विदाउट एनी ट्रायल. आप पे मुझे शक है, डाल दो जी जेल में, 2 साल तक मैं डाल सकता हूं. तो इसको बड़ा नेगेटिवली लिया गया लोगों ने. उसको लोग कहते थे, इंडियंस जो फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे उस टाइम, उसको कहते थे नो दलील, नो वकील, नो अपील. नो दलील का मतलब है हमारी कोई बात सुनाई नहीं जाएगी. नो वकील, हम कोई वकील नहीं कर सकते अपने आप को जेल से बचाने के लिए. और अपील क्या होता है? अपील होता है when we are dissatisfied with a judgment of a lower court, we can go to a higher court. सपोज मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस लड़ रहा हूं, मैं वहां पे हार जाता हूं, तो मैं हाई कोर्ट में अपील कर सकता हूं. अगर मैं हाई कोर्ट में केस लड़ रहा हूं और मैं हार जाता हूं, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूं. That is called appeal. When I am not happy with the judgment of the lower court, I can go to a higher court. वो नहीं था, तो उसको कहते थे नो दलील, नो वकील, नो अपील. बट इसको बड़ा नेगेटिव लिया गया लोग उसमें आगे. तो इवन महात्मा गांधी अनाउंस्ड ए नेशन वाइड हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919 कि हम वी विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस ब्रूटल लॉ in which any person can be put behind bars for 2 years without any trial. तो उसमें क्या हुआ था कि people also became very dissatisfied. लोगों ने demonstrations किए, लोग बाहर आए. And in Punjab there was a martial law which was announced. तो उस टाइम जो पंजाब था वो अंडर जनरल डायर हुआ करता था. जनरल डायर was the general who was in charge of Punjab at that point of time, and he was stationed at Amritsar. ठीक है. फिर क्या हुआ? 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल यानी बैसाखी डे होता है ना. हम हर साल बैसाखी कब मनाते हैं बेटा? कब मनाते हैं बैसाखी? 13 अप्रैल को मनाते हैं. 13 अप्रैल को एक प्लेस है अमृतसर में, उसको कहते हैं जलियांवाला बाग. तो वहां पे लोग इकट्ठे हुए थे बिकॉज ऑफ बैसाखी फेयर ऑल्सो, एंड सम हैड कम टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर द राउलाट एक्ट. मगर मोस्टली जो लोग आए थे वहां पे वो बैसाखी का मेला देखने के लिए आए थे.
So what happened was कि वहां उस अगर आप उसको वहां पे जाओगे तो आप देखोगे कि उसका एग्जिट पॉइंट एक ही है वहां पे, आना जाना एग्जिट एंट्री एक ही है, कोई दूसरा एग्जिट पॉइंट नहीं है। तो जब लोग वहां इकट्ठे हुए थे तो चुपके से वहां पे जनरल डायर आया अपनी गोरखा रेजिमेंट के साथ और उसने जो एंट्री पॉइंट ही ब्लॉक कर दिया। तो उसका एग्जिट पॉइंट तो वही था ना, अगर लोगों को जाना था तो उसने पूरी अपनी फौज को वहां पे बिठा दिया, मतलब वहां पे कर दिया। पहले लोगों को समझ ही नहीं आया कि वो करने क्या वाले हैं। कई बार होता है ना कि आ जाती है फौज अचानक से, तो यू आर नॉट एंटिसिपेटिंग दैट। तो उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया ज्यादा, चुपके से देखा, फिर उसने उनको पोजीशन करवा के फिर ही ऑर्डर देम टू फायर ऑन द क्राउड। उस क्राउड में वुमेन भी थे एंड चिल्ड्रन भी थे। तो उसका उसने कोई लिहाज नहीं किया, उसने कहा यू फायर। उसने उनको ये भी ऑर्डर दिया था कि आप बंदूक को नीचे की तरफ रखो ताकि लोग अगर लेट भी जाएं तो भी गोली लगेगी उनको। ऑर्डर नहीं तो होता ना ऊपर की तरफ रखते हैं तो जो लेट जाएगा कई बार वो बच भी जाता है। बट ही ऑर्डर्ड देम टू कीप देयर राइफल्स लो सो दैट एवरी मोस्ट ही कैन किल एज मेनी एज पॉसिबल। तो उससे कई लोग मारे गए थे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल गॉट किल्ड, हंड्रेड्स मेनी गॉट इंजर्ड एंड दिस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट अमंग इंडियंस कि देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, कैसे हमको हमारे साथ हत्याकांड किया जा रहा है। तो दिस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। Even you might have heard about Shaheed Udham Singh also. Have you heard about his name? There was a movie also which was made some time back, which got some award also. So Shaheed Udham Singh was also watching that scenario. He was on a tree in nearby somewhere. He could see that massacre happening in Jallianwala Bagh, and then he chased General Dyer like a shadow till England, and he killed him there. After 21 years, साई की तरफ उसके पीछे लगा और उसने कसम खाई थी कि मैं मारूंगा इसको। तो ठीक है, that was, but it created a lot of dissatisfaction among Indians. तो non-cooperation movement was also a big success because of the Rowlatt Act. ठीक है। फिर non-cooperation movement के बाद एक और चीज हुआ था इंडिया में। The British was wanted that there should be some sort of amendment in the constitution. कुछ थोड़े से हल्के से powers Indians को भी मिलने चाहिए, but Indians were not happy with that. They wanted a पूर्ण स्वराज। क्या मानना चाहते थे? पूर्ण स्वराज। तो 1920 में 28 में एक कमीशन आया था जिसको साइमन कमीशन कहा जाता है, अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन साइमन। तो जो साइमन कमीशन आया, उन्होंने वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसमें ये था कि उसमें कोई इंडियन था ही नहीं, सारे ब्रिटिश मेंबर्स थे उसमें। तो सबसे बड़ा जो लोगों में ये उसका विरोध ये था कि हमारा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इस कमीशन में नहीं है, और वो हल्के फुल्के अमेंडमेंट्स करना चाहते थे, और वो हल्के फुल्के कंसेशंस देना चाहते थे विच वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द इंडियंस। तो उन्होंने इंडियंस ने उसको बहुत ही विगरसली उसका विरोध किया, और पीपल केम टू द स्ट्रीट्स डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट उनको विद बैनर्स लाइक साइमन गो बैक। काले बैनर्स लेके लोग पूरे इंडिया में उनको आए। तो उस पर भी उन लोगों पर काफी लाठीचार्ज हुआ, लोगों को बड़ा मारा पीटा गया, एंड वी लॉस्ट आवर वन इंपॉर्टेंट लीडर लाइक लाला लाजपत राय, हु आल्सो वाज डेमोन्स्ट्रेटिंग against the British for the Simon Commission. He was beaten so badly that he ultimately lost his life. So this is Simon Commission. इसके बाद क्या हुआ? 1930 में फिर महात्मा गांधी ने एक और मूवमेंट शुरू कर दी थी, बिकॉज इंडिया में सॉल्ट जो था उसको ब्रिटिश की मोनोपोली थी, और सॉल्ट का प्राइस बहुत हाई रखा गया था, और उसको सिर्फ गवर्नमेंट ही बना सकती थी, कोई दूसरा आदमी। ऑल्दो सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड वेरी इजीली, जस्ट हैव टू इवैपोरेट द सी वाटर एंड यू विल गेट सॉल्ट।
और इंडिया इज सराउंडेड बाय योर इंडिया इज अ पेनिनसुला, सो नीचे का सारा हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है. ऑन द ईस्ट इट इज बे ऑफ बंगाल, ऑन द वेस्ट इज अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशन है. बट दे वर नॉट अलाउड. तो हैवी टैक्सेशन हो रही थी. तो महात्मा गांधी ने बोला व्हाई ए पुअर पर्सन का क्या फायदा अगर वो सॉल्ट भी अफोर्ड ना कर सके, हाउ ही विल हैव हिज ब्रेड. तो महात्मा गांधी ने एक मार्च शुरू किया था. कौन सा मार्च? सॉल्ट मार्च. उसको क्या कहते हैं उस मार्च को? डांडी मार्च. That Dandi March was started by Mahatma Gandhi and it culminated at the sea coast on 6th of April 1930. 6th of April 1930 को महात्मा गांधी ने खुद अपने हाथों से सॉल्ट बनाया एंड दिस ट्रिगर्ड ए चेन रिएक्शन थ्रू आउट द कंट्री. सारे लोग चले गए समुद्र तट पे और नमक बनाने लगे. एंड गवर्नमेंट इट बिकेम मास मूवमेंट एंड गवर्नमेंट कुड डू. अब कितने लोगों को वो जेल में डालते, इट वो बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल. इट ट्रिगर्ड ए चेन रिएक्शन थ्रू आउट द कंट्री. Although Mahatma Gandhi was also imprisoned and many leaders were imprisoned, but it created that situation when people would go and they would make salt and they will break the salt laws, and they also started breaking many other laws of the British also. So that is called a civil disobedience movement. So this movement also continued and this created, and then he was invited by the Viceroy Lord Irwin to just follow up this movement, and we will discuss some package form of package for the Indians, how they can get more representation. And there were some round table conferences which happened in London, but they were all failures. तो नहीं हो पाया और वो अल्टीमेटली लोगों को पसंद भी नहीं आया और जो उन्होंने दिया था वो. अब यहाँ पे another important event which happened was in 1939 a World War II started. क्या हुआ था बेटा? World War II started in 1939. तो यहाँ पे क्या हुआ था? तो ब्रिटिश ने क्या बोला था महात्मा गांधी को, अगर आप हम लोगों को सपोर्ट करोगे तो जैसे ही ये वॉर खत्म होगा हम आपको आजादी देंगे. दिस वाज द प्रॉमिस व्हिच ब्रिटिश मेड विद महात्मा गांधी. तो मतलब ऐसा था, मगर समहाउ 1939 से 1942 तक उन्होंने सपोर्ट तो लिया. इंडियंस वेयर सेंट टू द वॉर जोन्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. दे फॉट अगेंस्ट द नाजी पावर्स एंड द फैसिस्ट पावर्स for the British, but ultimately Mahatma Gandhi को लगा कि now the British was under a lot of pressure because their economy was under stress because a lot of money was getting wasted in the war. तो महात्मा गांधी ने 1942 में इस चीज का फायदा उठा के अंग्रेजों को बोला, we will not wait for the end of the war, you please quit this country. उसको कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट. क्या कहते हैं? तो अगस्त 1942 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया, which also was very popular, and people in mass came to the roads and they wanted that the British should ultimately leave this country. और फिर जब by the time the war, the Second World War was finished in 1945, British now realized कि अब हम we can no longer control this country and we don't have the economic power also. So they started negotiations with Indian leaders how we can give independence to our country. But there was in the meantime there was another party led by Muhammad Ali Jinnah. It was called as Muslim League. तो वो मुस्लिम लीग जो था, they had some interest. They wanted that
we should have a separate territory for Muslims where we are in majority. There were certain pockets उस टाइम जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी पे थे, जैसे पंजाब, फिर सिंध, फिर आपका बंगाल, वो कुछ एरियाज थे जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी पे थे, तो वहां पे वो चाहते थे कि एक सेपरेट उनको मिले। तो अल्टीमेटली दिस सक्सीडेड एंड इंडिया गॉट पार्टीशन्ड इन 1947 एंड पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड ऑन 14th August. There were two parts. One was West Pakistan, जिसको आप आज के पाकिस्तान को जानते हो, and there was East Pakistan, जिसको बांग्लादेश के नाम से जानते हो आज के डेट में, because Bangladesh finally got its freedom in 1971 from Pakistan. तो ultimately this was how our movement followed after Mahatma Gandhi was the real leader who led our movement, freedom movement, and made us and we got freedom under his leadership. ठीक है, कुछ डाउट है आपको इसमें? Okay. Now I will take up another topic like globalization भी है आपका ना. What do you mean by globalization as such? Correct. So globalization is when we think beyond the narrow borders of our country, or when we think when we have a broader picture as such. So globalization जो है वो बहुत पहले से ही शुरू हो गया था. It had already started. तो पहले क्या होता था? There were trade routes. पहले ट्रेड बहुत होता था. You might be knowing कि even up to the 18th century the two major wealthy countries in the world कौन थे? और up to mid 18th century, जब तक अंग्रेज हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी, तब तक कौन दो? इंडिया एंड चाइना वे आर द टू वेल्थिएस्ट कंट्रीज. तो हमेशा यूरोपियंस की इच्छा रहती थी, दे वांटेड टू गेट सम फुटहोल्ड इन इंडिया टू डू बिजनेस. They knew that India was very rich in textiles. They knew India was very rich in spices. They knew India was having a lot of natural resources. So and India was very wealthy also. तो पहले क्या होता था? ट्रेड रूट्स जो होते थे उसको सिल्क रूट्स कहा जाता था. तो वो एक्चुअली वो एरियाज बड़े ही डिफिकल्ट होते थे. क्या होते थे? They were very difficult areas to travel because they were having a rocky terrain, mountains थे बीच में, उनको पार करना बड़ा मुश्किल होता था. और कई बार जो लोग घोड़ों पे लेके जाते थे सामान, उनको लूट लेते थे रास्ते में. आपने बिजनेस कर लिया, मुश्किल से 1000 किलोमीटर, आपने 1500 किलोमीटर चले गए, बिजनेस किया, आपने अपना सामान दे दिया, पैसे लेके आ गए. अब आपको उसी रूट से वापस जाना है, रास्ते में उनको लूट लिया जाता था. So the area was not safe. It was difficult to travel. और अगर बीच में विंटर आ जाता तो आदमी फंस जाता था लंबे समय के लिए in snow and everything. तो उस चीज के लिए वो हमेशा they were desperate कि we should find some other easy route to India where we can be able to do business with this country because this route was not suitable for them. तो सबसे पहला अटेम्प्ट किसने किया था? तो what happened was in 1492 Christopher Columbus started from Spain to find a route to India, easy route, sea route to India. ठीक है बेटा? हाँ? नहीं, मैं बताऊंगा क्या हुआ. एक्चुअली बेटा यहाँ से देखो, क्रिस्टोफर कोलंबस डिसाइडेड बिकॉज ही वाज पैट्रनाइज्ड बाय द क्वीन. तो उसने बहुत सारा उसको बोला था, आप ढूंढ लो, आपको जितना पैसा चाहिए दे देंगे. तो उस टाइम बड़ा ये बिकॉज इट वाज लाइक सोने की चिड़िया एंड एवरीबॉडी वांटेड टू फाइंड इट. तो उन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस ने बोला मैं ढूंढ लूंगा, आई कैन डू इट. तो उसने क्या किया? उसको ऐसा लगता था कि अगर पृथ्वी गोल है
तो अगर मैं वेस्ट से जाऊंगा तो मैं इंडिया पहुंच जाऊंगा, जो उसकी फिलॉसफी थी। तो उसने जो रूट लिया वो वेस्ट का लिया, और अल्टीमेटली ही रीच्ड अमेरिका, ही डिड नॉट रीच इंडिया। फर्स्ट ही टच्ड वेस्ट इंडीज, द कैरेबियंस, फिर अमेरिका, बट उसको वहां पे भी लोग, पीपल वेर पेंटिंग रेड कलर ऑन देयर फेसेस, तो उसको लगा मैं इंडिया में हूं एंड पीपल आर लाइक दैट, तो उसने उनका नाम दिया था रेड इंडियंस। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि अल्टीमेटली उसको लगा था कि मैं इंडिया पहुंच गया हूं, मगर वो इंडिया पहुंचा नहीं था, वो उसको बाद में पता चल गया था। तो जब वो फेल हुआ था तो एक दूसरा सेलर था, उसने बोला कि मैं जाऊंगा। उसका क्या नाम था? उसका नाम था, ही वाज अ पोर्चुगीज, उसका नाम था वास्को डे गामा। क्या नाम था? नाम सुना है आपने? सुना है आपने? ठीक है, तो उसने क्या किया था, उसने, अगर यहाँ पे पोर्चुगल है, मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दे रहा हूं, ये इंडिया है यहाँ पे, ठीक है, ये पोर्चुगल है, बीच में अफ्रीका पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने ये रूट सी का लिया, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से उसने ट्रैवल किया, और यहाँ पे नीचे जो साउदर्न मोस्ट टिप है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, अफ्रीका के साउदर्न टिप को, साउदर्न मोस्ट टिप को, साउथ अफ्रीका तो कंट्री है, मैं टिप की बात कर रहा हूँ, जहां से फिर समुद्र आ जाता है फिर लास्ट में, उसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप से उसने सर्कल मार के इंडिया के कोस्ट पे आ गया। वो कहां पहुंचा? कालीकट। कालीकट को आजकल आप कोझिकोड भी कहते हो, केरला में आता है, ठीक है। वहां पे उसने लैंड किया, और वो उसने किया 1498 में, और 1498 में वो पहला यूरोपियन था जो सी रूट से इंडिया आया था। यू गॉट इट? तो ऐसे में he discovered that route which was followed by other Europeans also later on. But Portuguese were the first to come through sea route to India, and Vasco da Gama was the person who was their leader at that point of time, who reached Calicut, Kerala, on the Malabar coast. There are two coasts ना इंडिया में, लेफ्ट साइड में नीचे से जाते हैं उसको कहते हैं मालाबार कोस्ट, अगर ईस्टर्न साइड से देखेंगे तो उसको कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। तो वहां पे उसने 1498 में पोर्चुगीज आए, तो पोर्चुगीज वे द फर्स्ट यूरोपियन जिन्होंने अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना शुरू कर दिया था। इवन गोवा भी उन्होंने कैप्चर कर दिया था। इवन 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो गोवा फिर भी पोर्चुगीज के कंट्रोल में था, और गोवा फ्री हुआ था 1961 में, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? व्हाट हैपेंड वाज कि अल्टीमेटली तो once this sea route got opened, so business increased, and many colonial powers followed them, like French, Dutch, and the British, because they all wanted to do business with, and they got some concessions from the Mughals who were ruling at that point of time. The first from East India Company, Sir Thomas Roe got permission to set up 3 factories in India from the Emperor Jahangir, who was the king at that point of time. ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि जब ये बिजनेस रिलेशन बढ़ गए, दे हैड मोर अट्रैक्शन फॉर टेक्सटाइल, दे हैड अट्रैक्शन फॉर स्पाइसेस, दे कुड गेट गुड मनी इन डूइंग बिजनेस। तो एवरी दीज दे वर ऑल डूइंग बिजनेस इन आवर कंट्री। तो यहाँ पे बिजनेस करते करते दे आल्सो गॉट एम्बिशियस रिगार्डिंग द पॉलिटिकल फ्रंट आल्सो, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स इन आवर कंट्री who were fighting among themselves, so they at times got the opportunity. Even they fought, these colonial powers fought against each other also. There was a struggle between the British and the French also.
for gaining stronghold in India. Ultimately, the British won that, and they ultimately succeeded in establishing their rule in our country. ठीक है. तो ये जो एक्सचेंज ऑफ ट्रेड, इसमें बहुत सारी चीजें जो हमारे पास नहीं थी वो हमको मिली, हमारी चीजें बाहर गई, तो एक इंटरेक्शन वर्ल्ड वाइड हो गया. पीपल could move. There was mainly movement of goods, movement of capital, and movement of people, which led to the global scenario as such. Movement became easy. जब movement easy हुई, so these powers could get stronghold in Asia, many Asian countries, and in Africa to make their colonies also. They were needing labor for their own plantations and everywhere. अपने जहाँ उसके लिए उनको लेबर चाहिए थे, तो कई बार वो हमारे लेबर को, जो यहाँ पे लेबर था, उनको सब्ज बाग दिखा के वहां ले जाते थे कि आपको बढ़िया हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा पगार मिलेगी, लाइफ आपकी यहाँ पे कुछ नहीं है, वहां पे बेहतर हो जाएगी. मगर ऐसा नहीं था. There were places like Fiji, Mauritius और कैरेबियंस. वहां पे लोगों को भेजा गया उनके प्लांटेशंस में, ब्रिटिश के प्लांटेशंस में काम करने के लिए, और वहां पे उन्होंने पहुंच के देखा कि उनकी हालत तो और भी खराब हो गई है. बिकॉज they were forced to work on plantations, they cannot escape also, they were just like slaves. ऐसे लेबर को कहते थे इंडेंचर्ड लेबर. क्या कहते थे? इंडेंचर्ड लेबर, जो अल्टीमेटली फिर बाद में 1921 में एबॉलिश हो गया. Indentured labor got abolished in 1920. You might have heard about. Are you following cricket or some sport as such? आप करते हो क्रिकेट वगैरह फॉलो? Okay. If you go to Mauritius, now you will find the majority population is Indians. If you go to Kenya, a sizable Gujarati population you can find in Kenya. If you go to West Indies, you will find, even for West Indies, there were players like Shiv Narayan, Chandrapal, Ram Naresh Sarwan. These are the next generation people, Indians who have settled there, because they were their fathers and forefathers were indentured labor. ठीक है? You might have heard about V.S. Naipaul. He is a Nobel Prize winner. वो भी एक descendant है indentured labor का. So this is how this globalization spread. Interaction, African colonies got formed, imperial interests got formed. In Africa, अगर आप देखोगे पूरा by the end of the 19th century, entire Africa was divided by colonial powers. कहीं पे जर्मनी का कंट्रोल था, कहीं पे डच का कंट्रोल था, कहीं पे फ्रेंच का कंट्रोल था, कभी इंडियंस, कहीं पे ब्रिटिश का कंट्रोल था. Major chunk was between British and French. Same was the case with Asia also. Almost they had established their colonies in all the countries of Asia and Africa. And first their interest was trade, but they got their stronghold, exploiting the weaknesses of their political weaknesses of the native countries. They could establish their rule also. They could establish their imperial power, imperial regime also. ठीक है? Now और क्या है आपके अभी इसमें? अच्छा, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना? इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो बेसिकली आपका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उससे पहले भी एक फेज था कि पहले बहुत सारी चीजें जो होती थी वो लोग गांव में ही बना देते थे, फिर उसके गुड्स को फिर वहां पे फैक्ट्रीज में फर्निश किया जाता था. उसको कहते थे, दैट वाज कॉल्ड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. क्या कहते थे?
ठीक है, तो फिर बाद में मिड 18th सेंचुरी में एक रेवोल्यूशन शुरू हो गया। कहां पे हुआ, किस कंट्री में हुआ? बेटा, in which country did the industrial revolution start? No. Industrial revolution started in the mid 18th century in England. कहां पे हुआ था? इंग्लैंड में. It was driven by some inventions which had happened related to textiles. जिसका यूटिलिटी हो रहा था टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. जस्ट लाइक स्टीम इंजन वाज देयर, स्पिनिंग जेनी वाज देयर. बहुत सारी मशीन्स का इन्वेंशन हुआ था जिससे मैनुअल वर्क बहुत कम हो गया था. एंड उससे क्या होता था कि बहुत सारा मास प्रोडक्शन वुड हैपन, एंड दिस आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. आप समझ रहे हो? जब चीजों को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर पाते हो विथ लिमिटेड मैन पावर विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, तो उससे क्या होता है? कॉस्ट ऑफ. अगर आप हाथ से मैं एक शर्ट बनाता हूं और मशीन से मैं एक शर्ट बनाता हूं, किसमें खर्चा ज्यादा आएगा? मशीन में खर्चा ज्यादा आएगा. मशीन में वन टाइम कॉस्ट ज्यादा होता था कि वो मशीन एक्सपेंसिव थी कि एक बार लगा दी, मगर फिर वो जब प्रोड्यूस करने लगती थी तो वो ढेरों के ढेर लगा देती थी. तो उससे क्या होता था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड कम डाउन. What British was doing when East India Company took control of our country, India was the biggest producer of cotton. तो वो हमारा कॉटन मैनचेस्टर भेज देती थी और वहां पे मशीनों में वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बना के नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे वर्ल्ड में वो भेज देती थी, एक्सपोर्ट करती थी. इंडिया में भी वो भेजती थी. हमारा ही कॉटन यूज करके हमको ही फिर वो फिनिश प्रोडक्ट बेचती थी. और हम खरीदते इसलिए थे क्योंकि हमको सस्ता मिलता था. जो हमारा आर्टिजन जो होता था वो एक शर्ट अगर 10 दिन में बनाता था, वो एक दिन में 100 शर्टें या 1000 शर्टें बना देते थे. तो इससे क्या हुआ? Our economy got poorer and the British became richer, क्योंकि उनका बिजनेस बढ़ गया. रॉ मटेरियल उनको इजीली इंडिया से मिल जाता था. तो देयर वाज अ बूम इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री which was followed by आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या था कि वो अब ब्रिटिश ने अपना एम्पायर तो बढ़ा दिया था, तो उनको अब जरूरत थी कि वो रेलवे नेटवर्क्स भी बढ़ा दे. और रेलवे के लिए पटरियां बिछानी थी, ट्रेनें बनानी थी. तो उसके लिए आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का मजबूत होना जरूरी है. नेटवर्क ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना था, रोड्स बनाने थे बिजनेस को. सॉरी. तो बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए आयरन एंड स्टील का भी इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आयरन स्टील इंडस्ट्री का होना जरूरी था. तो उसके लिए भी फिर ब्रिटिश ने काम किया, बट इट ट्रिगर्ड विद द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रेवोल्यूशन के बाद काफी समय तक दूसरी कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था. इट स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी, बट द पायनियर वाज द ब्रिटिश, where it started in the 18th century. And you know that in the mid 19th century many rail networks were started. Even in India also the first train, आपको पता है कहां से कहां चली थी और कब चली थी? कहां तक गई थी?
द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्ड फ्रॉम मुंबई टू ठाणे। ठाणे आजकल मुंबई में ही माना जाता है। इट वॉज अ डिस्टेंस ऑफ 33 किलोमीटर्स। इट स्टार्टेड इन 1853। तो मिड 19th सेंचुरी में ट्रेन्स का शुरुआत हो चुकी थी। ब्रिटेन में तो पहले ही हो चुकी थी, बट इंडिया में मिड 19th सेंचुरी तक हो चुकी थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से फैल रहा था और इसका हेल्प जो है वो इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में हो रहा था। तो इसीलिए फिर क्या हो रहा था कि जो लोग अर्बन रूरल एरिया से दे वर फ्लडिंग, they were moving to migrating to the urban areas in search of livelihood, because so many factories got developed, so many industries got developed। तो अर्बन में क्या हो रहा था, बहुत ओवर क्राउडिंग हो रही थी। चाहे मेजर एरियाज इन यूरोप देख लो या इंग्लैंड देख लो, लंदन हो या बड़ी बड़ी बर्मिंघम ले लो या आप मैनचेस्टर ले लो, या इंडिया में भी बड़ी बड़ी सिटीज जैसे मुंबई था, उस टाइम मैड्रास हुआ करता था, चेन्नई नहीं बोलते थे, कैलकाटा था, उसमें भी काफी माइग्रेशन हो रही थी। मेनी फैक्ट्रीज गॉट डेवलप्ड, पीपल वुड गो टू फॉर देयर लाइवलीहुड। तो वहां पे दे हैड टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट टाइम ड्यूरेशन। तो 10-12 घंटे का शिफ्ट होता था जो वो करते थे, इवन नाइट शिफ्ट भी करते थे। तो उस तरीके से फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी वो उसको जो उसका पायनियर था वो यूनाइटेड किंगडम था, ब्रिटिश था, बट बाकी कंट्रीज में भी वो धीरे धीरे आ गया था। ठीक है, एनी डाउट्स इन दिस? ओके, नाउ अब आपका एक वो प्रिंट वाला है ना, प्रिंट कल्चर जो था, it was having a tremendous impact on the overall world, क्योंकि जो प्रिंटिंग जो थी वो सबसे पहले शुरू हुई थी जापान और चाइना में। क्या हुई थी? मगर वो अलग टाइप की प्रिंटिंग थी, उसको कहते थे हेडेड प्रिंटिंग और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी कहते थे। उसमें वो डिजाइन वुड पे बना के उसको छापते थे। तो उस तरीके से प्रिंटिंग हो रही थी। तो उसमें मैनुअल लेबर लगता था ऐसी टाइप की प्रिंटिंग में। तो ये प्रिंटिंग हो रही थी और पहले लोग अगर बुक्स भी लिखते थे, इट वाज रिटन बाय हैंड। तो इट वुड टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम। उसको क्या कहते थे, जो हैंड से बुक्स लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स। उसको लिखने में बड़ा, और अगर हमको वही चीज दोबारा लिखनी थी तो दोबारा उतनी मेहनत करनी थी। उसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता था। तो इट वाज अ टीडियस वर्क। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वाज अ टीडियस वर्क। तो अब people were having a lot of ideas, philosophers were there. You have heard about Renaissance also. Renaissance आपको पता है क्या था? जो एक्चुअली यूरोप में शुरू हुआ था, मेनली इटली। लियोनार्डो डा विंसी का नाम सुना है आपने? तो पहले जो थी एक्चुअली 5th to 11th सेंचुरी जो यूरोप को कहते हैं पीरियड ऑफ डार्क एजेस। क्या कहते हैं? क्योंकि वो बहुत बैकवर्ड हो चुके थे यूरोप में वहां पे उस टाइम, 5th to 11th सेंचुरी। फिर बाद में 11th सेंचुरी के बाद लोगों में एक आया कि उस टाइम क्या था कि लोग कैथोलिक सिस्टम को ही सब कुछ मानते थे, जो उनके रिलीजन में लिखा था उसी को पूरा सही मानते थे और उसी को ब्लाइंडली फॉलो करते थे। बट फिर बाद में लोगों ने क्वेश्चनिंग शुरू कर दी कि व्हाई वी शुड डू दिस, व्हाई वी शुड डू दैट, क्या लॉजिक है, क्या रीजनिंग है। So many people came up who questioned the blind faith, blind things। तो उसी को फिर रेनेसांस कहा जाता है, जो इटली में ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ था, यूरोप में हुआ था। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो अभी क्या अगर सेव करना चाहते हैं उसको हम आगे से ऐड करके न्यू पेज भी पे जा सकते हैं।
ओके, पर नीचे 6 वाला आप अपना ना करना चाहें तो मैंने यहाँ पे ऐड कर सकता अच्छा, ऐड पे न्यू पेज करके, ओके हूँ, ओके, फिर आप करने की जरूरत नहीं। ठीक है सर। तो इसमें जो आप मैं बताता हूँ आपको, 5th 11th सेंचुरी तो डार्क एजेस थी, उसके बाद रेनेसांस शुरू हो गया। फिर क्या हुआ था, एक देयर वाज ए ट्रेवलर जस्ट लाइक कोलंबस, जो वेनिस का था, उसका नाम था मार्को पोलो। क्या नाम था? मार्को पोलो। उसने बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग की थी और अल्टीमेटली वो कामयाब हुआ था टू रीच चाइना। कहां पहुंचा था? तो चाइना, आई टोल्ड यू दैट इट वाज द बिगेस्ट पावर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो चाइना में बहुत सारा एडवांसमेंट था, और चाइनीज की खास बात यह थी कि वो अपनी चीजों को छुपाते थे दुनिया से। चाय उनको पता चल चुकी थी बहुत पहले, लेकिन वर्ल्ड में उन्होंने नहीं बताई। सिल्क उन्होंने बताया क्योंकि उससे उनको बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा था पूरे वर्ल्ड में, इसलिए वो सिल्क का बिजनेस करते थे, बट बहुत सारी चीजों को वो छुपाते थे। लेकिन जब मार्को पोलो वहां गया तो वहां पे लगभग 17 साल तक रहा, और वहां पे उसने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी देखी, और वो 1295 में वापस वेनिस चला गया और वहां पे उसने उस प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस कराया। आया समझ में? तो उस प्रिंटिंग को उसने वहां पे इंट्रोड्यूस कराया, और वो प्रिंट जो था वो पॉपुलर हो गया इटली में। वैसे उस टाइम इटली नहीं कहा जाता था उसको, इटली तो बाद में बना, मगर उस एरिया को इटली ही माना जाता है, वेनिस। तो वहां पे उसने उसको पॉपुलर किया। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यूरोप में आ चुकी थी, पोर्चुगीज में भी आ चुकी थी, हर जगह आ चुकी थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 15th सेंचुरी में एक आदमी था, उसका नाम था गुटेनबर्ग। ठीक है, तो वो बेसिकली गोल्ड स्मिथ था, तो उसको उनको स्लाइड्स वगैरह उसका बड़ा नॉलेज था उसको। तो उसके बेस पे उसने एक प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था 1448 एडी में। ठीक है, 1448 एडी में उसने उस प्रिंटिंग प्रेस को, उससे क्या हुआ, वो एक 50-50 पेज वो एक घंटे में ही प्रिंट कर पाता था। तो उसने जो पहली बुक प्रिंट की वो कौन सी थी? हाँ, कुछ आइडिया आपको? जो उसने पहली अपनी प्रिंटिंग प्रेस पे पहली बुक प्रिंट की थी वो थी बाइबल, द रिलीजियस बुक ऑफ द क्रिश्चियंस। वो उसने प्रिंट की थी। फिर ही गॉट एक्साइटेड, तो उसने बहुत सारे लोगों ने भी वो टेक्नोलॉजी सीखी, तो वो यूरोप में अब प्रिंटिंग बिकेम वेरी इजी, एंड मेनी बुक्स स्टार्टेड गेटिंग पब्लिश्ड। और जो बहुत सारे फिलोसोफर्स थे उस टाइम, उनके आइडियाज अब प्रिंट में आने लगे और लोगों तक एक्सेसिबल होने लगे। अब जब प्रिंटिंग बढ़ गई तो लिटरेसी भी बढ़ गई, लोगों को अब क्यूरियोसिटी हुई कि हमको पढ़ना आना चाहिए, तभी हम ये चीजें जानेंगे। जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सारे रेवोल्यूशंस हैं, ये दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रिंट कल्चर, बिकॉज जो आइडियाज थे फिलोसोफर्स के, ये जो मनमानी करते हैं, किंग्स बोलते थे हम भगवान ने भेजा है रूल करने के लिए, हम जो करेंगे वो सही है। दे क्वेश्चन दैट, बोला ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने, और रिलीजियस जो कैथोलिक सिस्टम था उसको भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। तो उनमें से एक आदमी था जिसका नाम था मार्टिन लूथर। क्या नाम था? मार्टिन लूथर। तो उसने एक, क्योंकि प्रिंटिंग आ चुकी थी, तो उसने एक कॉपी अपने वर्क की, उसका नाम था 95 थीसिस। क्या थे? तो 95 थीसिस का मतलब था कि what are the 95 ways in which the Catholic system is wrong?
जो कैथोलिक सिस्टम उस टाइम फॉलो हो रहा था, रिलीजियस सिस्टम, उसने 95 रीजन बताए थे उसमें अपनी बुक में कि वो गलत क्यों है। उसने वो उसकी कॉपी चर्च के बाहर रख दी और उसके सैकड़ों कॉपीज लोगों में बंटवा दी उसने। उन लोगों ने पढ़ा तो उनके दिमाग भी खुल गया, यार बहुत सारी चीजें तो लॉजिकल बता रहा है, ऐसे नहीं है, विद लॉजिक। और उसने कैथोलिक्स को चैलेंज भी किया था, आई एम ओपन फॉर डिबेट, कि अगर आपको ऑब्जेक्शन है मेरी राइटिंग से तो हम खुला डिबेट करेंगे। आई एम रेडी फॉर द डिबेट। मैं तो आपको 95 रीजंस बता रहा हूं कि व्हाई यू आर रॉन्ग। आया समझ में? तो वो डिबेट को उसने उस चीज को उसने पब्लिक कर दिया, लोगों ने भी पढ़ा, तो लोगों में भी एक जागृति आई, वो कैथोलिक्स के अगेंस्ट हो गए। और उस सेक्ट को क्या कहते हैं, उन लोगों को जो कैथोलिक्स के अगेंस्ट होके सामने आए थे, जो एक मूवमेंट शुरू हो गई थी यूरोप में, हु वर अगेंस्ट द कैथोलिक्स, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट्स। और मार्टिन लूथर वाज द लीडर ऑफ द प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्ट का मतलब होता है जब हम किसी की बगावत करते हैं, तो प्रोटेस्टेंट्स मतलब हु वर अगेंस्ट द कैथोलिक्स। अगर आजकल आप वर्ल्ड में देखोगे, क्रिश्चियंस आपको दो टाइप के मिलेंगे, या तो कैथोलिक क्रिश्चियन होगा या तो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन होगा। और मेजॉरिटी आपको या इंग्लैंड देखो या अमेरिका देखो तो प्रोटेस्टेंसी ज्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, तो प्रोटेस्टेंट्स का ही लीडर था और बहुत सारी मूवमेंट हुई। कैथोलिक्स ने फिर उनको प्रोसिक्यूट करना भी शुरू कर दिया जो बागी थे, और उन्होंने उस पे भी थोड़ा सा उनकी प्रिंटिंग पे भी कंट्रोल करने की कोशिश की, बिकॉज दे वेयर इन्फ्लुएंसिंग द किंग्स आल्सो, कि आप उन पे नजर रखो जो हमारे खिलाफ छाप रहे हैं, उनको पकड़ो, उनको जेल में डालो, उनको मारो। तो उस तरीके से दैट थिंग केप्ट ऑन चेंजिंग। तो ये प्रिंटिंग की ही देन थी, जो बहुत सारे फिलोसोफर्स के आइडियाज अब कॉमन लोगों के पास आने लगे। अब इजीली वो अफोर्ड कर सकते थे वो किताबें, जो पहले उनके नहीं कर सकते थे। तो प्रिंट कल्चर से पूरे वर्ल्ड में, वो यूरोप में तो फैल ही चुका था। अब इंडिया में प्रिंट कैसे आया? इंडिया में कैसे आया? करेक्ट। पोर्चुगीज जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने अपना एक एस्टैब्लिशमेंट शुरू किया गोवा में। उन्होंने कब्जा कर लिया था गोवा में, वहां पे वो सेटल भी हो गए। और वहां पे गोवा में उनका, अगर आप 1498 से 1961 का गैप देख, लगभग 500 साल तक उन्होंने राज किया गोवा में। हैव यू गॉन टू गोवा? तो वहां पे अगर आप जाओगे तो आपको बहुत पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस दिखेगा वहां के रहन सहन में, क्योंकि बहुत सारे उनके जो वहां पे सेटल्ड हैं वो उनके ही डिसेंडेंट्स हैं। चर्चेज आप देखो, खाना देखो, बहुत सारी चीजें देखो, तो आपको पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस दिखेगा वहां पे। भले ही अभी उनको 60 साल हो गए हैं इंडिया को छोड़े हुए, प्रिसाइसली 63 इयर्स हो चुके हैं। तो मगर अब वहां पे इंडिया में पोर्चुगीज ने लेके आए प्रिंटिंग, अपना प्रिंटिंग प्रेस लेके आए, तो इंडिया में उन्होंने प्रिंट करना शुरू कर दिया। तो प्रिंटिंग वाज ब्रॉट टू इंडिया बाय पोर्चुगीज इन गोवा। फिर तमिल में भी प्रिंटिंग शुरू हो गई थी 16th सेंचुरी में, तो तमिल में भी प्रिंटिंग शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी शुरू हो गई, कन्नड़ में भी हुई, अलग अलग जगहों पे हो गई। और फिर क्या हुआ, जब ब्रिटिश का हमारा कंट्रोल हुआ तो पहला न्यूज़पेपर भी
जो इंडिया में बना उसका क्या नाम था? जो पहला न्यूज़पेपर था उसका नाम था द बंगाल गैजेट। ये 1780 में शुरू हुआ था कलकत्ता में। हिकी नाम का एक एडिटर था जो ब्रिटिश था, वो उसका एडिटर था। और स्टार्टिंग में वो क्या करता था, वो जो गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनका मजाक उड़ाता था इसमें न्यूज़पेपर्स में, कार्टून बनाता था, मजाक उड़ाता था, वो सब चीजें थी। तो उस पर ऑब्जेक्शन भी की थी काफी ब्रिटिश ने। वॉरेन हेस्टिंग्स जो उस टाइम गवर्नर जनरल था, उसने काफी ऑब्जेक्शन भी किया था अखबार, क्योंकि उस टाइम फ्रीडम, थोड़ा बहुत फ्रीडम ऑफ प्रेस था, क्योंकि उन्होंने अभी कर्ब नहीं किया था फ्रीडम, तो उसको फिर उन्होंने कंट्रोल कर दिया था। और फिर इंडिया में बहुत सारे इंडियन पब्लिकेशंस भी शुरू हो गए थे। जैसे इंडिया में उस टाइम कुछ सोशल रिफॉर्मर्स भी थे जो एक्टिव थे। कौन इंडिया के कुछ सोशल रिफॉर्मर्स के नाम आप बता सकते हो क्या? कौन है वो? बाल गंगाधर तिलक को आप कंसिडर कर सकते, बट ही वाज मोर ऑफ ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। वो एक्चुअली आपका जो धर्मदल मैंने बताया था ना, एक्सट्रीमिस्ट जो थे, मॉडरेट्स एक तरफ थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, वो आपके मोतीलाल नेहरू, ये दे वर मॉडरेट्स। बट एक्सट्रीमिस्ट्स में आते थे तीन खास नाम। लाल बाल पाल, क्या नाम था इनका? ये हमारे तीन जो मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, एंड दे वर मोर बाल गंगाधर तिलक, सही बोला आपने। व्हाट अबाउट लाल? लाल बहादुर शास्त्री तो बहुत इंडिपेंडेंट इंडिया वाला बात है, वो उस टाइम की बात हो रही थी, जब वी वर फाइटिंग फॉर आवर इंडिपेंडेंस। राजा रवि वर्मा, ही वॉज अ पेंटर, वो बनाते थे ना हमारे, हाँ हमारे रिलेटेड टू नेशनलिज्म, वो काफी भारत माता, वो सब चीजें ना। ही वॉज मतलब नेशनलिस्ट एंड ही वॉज अ पेंटर ऑल्सो, राजा रवि वर्मा। अब मैं यहाँ पे सवाल ये है कि हु वॉज लाल एंड हु वॉज पाल? Lala Lajpat Rai is correct. You should be confident about yourself. So you should speak up, na? So you were knowing the answer, but you were hesitating. Lala Lajpat Rai. What about Pal? Pal was Bipin Chandra Pal.
बिपिन चंद्रपाल। तो तीन है, अब बताओ आप कौन था लाल? Who was killed by the British when he was protesting against the Simon Commission? बाल गंगाधर तिलक, he was the great revolutionary and he was, आपको पता है कि आपको पता है बॉम्बे में गणपति बाबा मोरिया हर साल होता है, और उस लगभग 14 दिन तक चलता है, फिर विसर्जन होता है। गणेश चतुर्थी से स्टार्ट होके फिर विसर्जन तक, मतलब लगभग 10-11 दिन तक वो फेस्टिवल चलता है। डू यू नो वो किसने इंट्रोड्यूस कराया था? बाल गंगाधर तिलक ने कराया था, टू यूनिफाई पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश। हमारी संस्कृति जो ग्लोरियस थी, लोगों को उसके बारे, और वो तब से अभी तक वो ही चल रहा है, वो हर साल होता है। वो कहते हैं पुरजावर्सी लोकरिया, मतलब हर साल जल्दी आना। एवरी ईयर दैट इज सेलिब्रेटेड। इट वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। He was also called Lokmanya because people would respect him a lot. Lokmanya उसको कहा जाता था। Then बिपिन चंद्रपाल was also a firebrand leader, और वो ये तीनों जो थे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के थे, और इनका नहीं बनता था मॉडरेट्स के साथ, क्योंकि इनका तरीका थोड़ा सा हार्ड था। और कई बार फिर जब वो स्प्लिट भी हुआ था तो कई साल तक ये बाहर ही रहे कांग्रेस से, बिकॉज मॉडरेट्स वे डोमिनेटिंग देयर, तो उन्होंने ये बाहर उनको रहना पड़ा था कई साल तक। फिर बाद में फिर से यूनाइट हो गए थे कुछ सालों के बाद। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए हैं, अब प्रिंटिंग में थे। तो बंगाल गैजेट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर व्हिच वाज पब्लिश्ड बाय ड्यूरिंग द इन इंडिया। इट वाज इन इंग्लिश, ठीक है। तो इंडियन पब्लिकेशंस भी आ गई थी। जैसे हम सोशल रिफॉर्मर की बात कर रहे हैं, तो अब बताओ कि कौन और सोशल रिफॉर्मर है जिसके बारे में आपको पता है? Have you heard about Raja Ram Mohan Roy, who fought against the sati प्रथा? क्योंकि उसके परिवार में किसी को सती कर दिया गया था जबरदस्ती। एंड सती मीन्स कि हस्बैंड की डेथ के बाद जबरदस्ती उसकी फ्यूनरल पायर पे वाइफ को जला देना, उसको कहते हैं सती। सती जो बेसिकली होता था, कुछ कोई लेडी जो बहुत डेडिकेटेड थी या डिवोटेड थी अपने हस्बैंड के लिए, वो कई बार क्या करती थी कि वो स्वेच्छा से, मतलब अपनी मर्जी से फ्यूनरल पायर पे वो जाती थी, लेकिन फिर उन्होंने उसको जबरदस्ती कर दिया। अब सब लोग तो नहीं चाहते थे। एंड देयर वाज अनदर मेजर प्रॉब्लम सती में, क्या था कि उस टाइम देयर वाज अ ह्यूज गैप बिटवीन मेन एंड वुमेन एट द टाइम ऑफ मैरिज। मेन वेयर मच ओल्डर देन द वुमेन। कई बार 10 साल 20 साल 25 साल का भी फर्क हो जाता था। तो फिर क्या होता था, who will die early? अब आप बताओ मुझे, in that case what is the probability of who will die early? किसकी probability है? Men will die। तो वो बूढ़ा हो गया होता था, वो अभी यंग ही होती थी वाइफ, तो वो मर जाते थे, तो उनको भी जबरदस्ती बांध के उसी में जला देते थे। तो इट वाज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ हैवॉक। तो उसके लिए जब राजा राम मोहन राय को भी ये फेस करना पड़ा, तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। एंड ही टुक हेल्प ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट and was able to abolish sati in 1829 when Lord William Bentinck was the Governor General of India with the help of Lord William Bentinck। तो 1829 में उन्होंने सती को abolish करवाया। And he also was able to pass a law in which widow remarriage was made legal। क्या था? विडो रीमैरिज वाज मेड लीगल। मतलब जो विधवा होती थी उसको यूजुअली फिर दोबारा शादी नहीं होती थी, मगर उन्होंने उसको भी पास करा, विच वाज, इसके लिए उनको काफी विरोध सहना पड़ा था, क्योंकि जो कंजर्वेटिव लोग थे वो इस बात को हजम नहीं कर पाए थे कि विडो कैसे फिर से शादी कर सकती है।
तो उन्होंने भी कुछ पब्लिकेशंस अपनी की थी। ही ऑल्सो फॉर्म्ड ए ब्रह्मो समाज, एन ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने बनाई थी। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी अपनी पब्लिकेशन शुरू की थी जिसको कहते हैं संवाद कुमुदनी कहते थे उसको, संवाद कुमुदनी, इन विच ही वुड ओपनली एक्सप्रेस हिज व्यूज। जहां पे सोशल प्रॉब्लम है तो ओपनली उसको करते थे। तो बहुत सारे, एंड ही वाज इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश रूल बिकॉज ही थॉट कि हमारे सोसाइटी में इतने प्रॉब्लम्स है कि हम क्या लड़ेंगे इनसे, हमको पहले अपने को सुधारना होगा, हमको इनका एजुकेशन फॉलो करना चाहिए, काफी मॉडर्न है, अगर हम इनसे कुछ सीखेंगे तो अच्छा है, अभी हमको कोई इनसे आजादी लेने की जरूरत नहीं। ही वाज ऑफ दैट व्यू। He wanted English education to be introduced in India, and ultimately during the time of Lord William Bentinck, Lord Macaulay introduced the compulsory English education in our schools. Lord Macaulay who introduced English education in our schools, which was made compulsory. ठीक है, तो यहाँ ये भी विलियम बेंटिक के टाइम ही हुआ था, when he was the Governor General. तो कहने का मतलब है कि ये पब्लिकेशंस जो आने लगी तो लोगों के दिमाग खुल गए, एंड पीपल स्टार्टेड टू क्वेश्चन व्हिच वाज रॉन्ग इन द सोसाइटी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट भी हो गया, बिकॉज यू नो इन 1857 देयर वाज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस व्हिच वाज कर्ब्ड बाय द ब्रिटिश। जो हम हार गए थे तो फिर ब्रिटिश ने जबरदस्ती काफी चीजें कर दी थी। And in 1857 one more thing, important thing had happened. क्या हुआ था उस टाइम, ब्रिटिश में क्या चेंज हुआ था, ब्रिटिश रूल में क्या चेंज हुआ था 1857 के बाद, जब वो अनरेस्ट हुआ था और ब्रिटिश ने उनको वापस इंडिया में अपना रूल एस्टेब्लिश किया था। मतलब 1858 में ऐसा हुआ था। क्या चेंज हुआ था? ब्रिटिश रूल तो चालू रहा, बट देयर वाज वन मेजर चेंज। वो क्या था? Actually, if we talk about the British rule, we can say the British rule was there from 1757, from the Battle of Plassey, which happened in 1757. तो हम इसको काउंट करेंगे till 1947 में इंडिया फाइनली गॉट इंडिपेंडेंस। तो इसमें एक फेज था 100 साल का, 1757 से 1857। फिर दूसरा फेज था 1857 से 1950। ये 100 साल का था, ये 90 इयर्स का था। तो इन दोनों में कुछ एक मेजर डिफरेंस आया था। अंग्रेजों की ही शासन था, मगर एक डिफरेंस था। वो क्या था? शायद आपको आज तक किसी ने इसके बारे में नहीं बताया होगा, बट देयर वाज अ मेजर चेंज। वो चेंज ये था कि 1757 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी हम पे रूल कर रही थी, और 1857 के बाद 1858 से 1947 तक इट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी नो लॉन्गर रूल्ड आवर कंट्री, इट वाज डायरेक्टली रूल्ड बाय द ब्रिटिश क्राउन। तो क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1858। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया था, क्योंकि उनको लगा एक मामूली सी कंपनी इतने बड़े साम्राज्य को ठीक से नहीं संभाल सकती है। दैट्स व्हाई, क्योंकि 1857 में बहुत दिक्कत हुई थी अंग्रेजों को, और 4-5 महीने तक तो कोई सरकार थी ही नहीं। तो 1857 से 1947 में ब्रिटिश क्राउन में था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि फिर पब्लिकेशंस अनरेस्ट शुरू हो गया, लोगों ने लिखना शुरू किया। तो नॉन जो इंडियन लैंग्वेजेस में पेपर्स आने लगे, न्यूज़पेपर्स आने लगे, उसको कहते हैं वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस। क्या कहते हैं? वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस। तो इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट लॉ अंग्रेजों ने 1878 में पास किया। उसको क्या कहते हैं?
लॉ में ये था, उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस कर दी थी इंडियंस पे, जो चीजें ऑब्जेक्शनेबल होंगी अंग्रेज गवर्नमेंट के हिसाब से उस पे वो पाबंदी लगा सकते हैं। ये लॉ था। हाँ, मतलब वो कुछ नहीं कर सकते। उसमें क्या लॉ था, उनका रूल था कि अगर उन्होंने पहली बार किसी प्रिंटिंग प्रेस से या किसी न्यूज़पेपर से कुछ ऑब्जेक्शनेबल देखा तो हम उनको वार्निंग देंगे, और अगर दूसरी बार अगर वो करेंगे तो हम उसको हम उसका प्रिंटिंग प्रेस ही बंद कर देंगे। वी विल टेक ओवर दैट प्रिंटिंग प्रेस। नहीं चाहिए वो प्रिंटिंग प्रेस। दैट मीन्स दे वर कर्बिंग द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो उस लॉ को क्या कहते हैं? ये आपके परसों एग्जाम में भी आ सकता है। ये इम्पोर्टेंट है। मे बी शॉर्ट नोट्स में या कहीं ना कहीं जरूर आएगा, या फिल इन द ब्लैंक्स में या ऑब्जेक्टिव टाइप में। इसको कहते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, which was introduced by Lord Lytton, who was the governor, who was the viceroy of India at that point of time. Vernacular Press Act. The viceroy of India. जब ईस्ट इंडिया कंपनी का होता था राज, तो उस टाइम जो उनका हेड होता था उसको कहते थे गवर्नर जनरल। लेकिन 18 मैंने आपको बताया 1858 से 1947 तक जो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का हेड इंडिया में होता था उसको कहते थे वाइसरॉय। समझ में आया आपको? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 बाय लॉर्ड लिटन 1878। अब इस लॉ में यही था, अगर आपने कुछ गलत हमने पाया तो हम आपको वार्निंग देंगे, और दूसरी बार आपने फिर से पाया तो हम आपके प्रेस को बंद कर देंगे। तो इस चीज को काफी नेगेटिवली लोगों ने लिया, इंडियन मूवमेंट वालों ने, कि उन्होंने हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब किया है, उन्होंने उसको बंद कर दिया है। अब हम खुल के अपने विचारों को नहीं ला सकते। ये हमारे फ्रीडम को कर्ब करता है। तो इससे क्या हुआ, लोगों ने काफी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया और उसको बड़ा नेगेटिवली लिया गया, और कुछ लोग अंडरग्राउंड होके कुछ ना कुछ छाप रहे थे फिर भी, बट दे वर डूइंग इट सीक्रेटली, and they were under the threat of the British government, who will catch them anytime, who could catch them anytime. आया समझ में आपको? एक चीज है जो आपको पता होना चाहिए। एक बिल लाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसको कहते हैं इलबर्ट बिल। वो क्या है? इलबर्ट बिल क्या था? इलबर्ट बिल ये आपको पता होना चाहिए वैसे, इसलिए मैं बताऊं। ये 1883 में लाया था। इसमें इस बिल जो था, जो रूल था, उसमें ये बोला गया था कि एक इंडियन जज भी एक यूरोपियन को ट्राई कर सकता है। यूरोपियन, अगर यूरोपियन ने कोई गलती की है, पहले ऐसा नहीं होता था। यूरोपियन अगर कोई क्रिमिनल होता था या ब्रिटिश कोई क्रिमिनल होता था, उसको इंडियन जज नहीं कर सकता था ट्राई। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि वी शुड प्रमोट इक्वालिटी बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिश, तो इवन एन इंडियन जज कैन आल्सो ट्राई ए यूरोपियन और ब्रिटिश कन्विक्ट। लेकिन फिर अंग्रेजों को ये बात हजम नहीं हुई, तो उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया और गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा, और उन्होंने अब इस बिल को वापस ले लिया। और ये जब हमारे लोगों में
को पता चला, हमारे लीडर्स को पता चला, तो उन्होंने देखा कि देखो ये हमारे साथ कैसा भेदभाव है। इनका जज तो हमारे बंदे को कुछ भी सजा दे सकता है, लेकिन हमारा जज इनके बंदे का कुछ भी नहीं कर सकता। तो दिस शोड द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द इंडियंस। तो ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो था, ये इसने काफी कर्ब कर दिया हमारे फ्रीडम ऑफ प्रेस को, एक्सप्रेशन को, और इसको काफी नापसंद किया गया, और इसको लोगों ने काफी किया। मगर इससे जो अच्छी खराब चीजें अंग्रेजी गवर्नमेंट की वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी, क्योंकि वैसी चीजें छप ही नहीं पाती थी। और छापने वाले वो थे जो लोग अपने को रिस्क में डाल के अंडरग्राउंड होके छाप रहे थे। तो देयर वाज लाइक बाल गंगाधर तिलक ने केसरी, उनकी एक न्यूज़पेपर था, उसमें उन्होंने 1907 में पंजाबी लोगों को जो अंडमान लेके जाते थे काला पानी, उनके खिलाफ उसने उनकी सिंपैथी में कुछ लिखा था कि इनके साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं। पंजाबी कुछ लोग थे जिनको काले पानी की सजा हुई, उसको काला पानी कहा जाता था, अंडमान निकोबार में जिनको भेजा जाता था। उसको आजकल उस जेल को कहते थे सेल्यूलर जेल। वो आजकल भी एक वो म्यूजियम बन चुका है। काफी परेशान किया जाता था वहां पे। तो वहां पे उसकी सिंपैथी में उन्होंने लिखा था अपने केस में, तो उनको जेल में डाल दिया गया था। तो देयर वाज नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। प्रेस तो इवन महात्मा गांधी भी कहते थे कि हमारा तो उन्होंने वॉइस ही बंद कर दिया, क्योंकि अब हम खुल के बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुछ इनके खिलाफ लिख ही नहीं सकते। ठीक है। तो ओके, और आई थिंक any other doubts you are having in history? Let me see how much time is left. लामा, उलेमा होते हैं मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स। देवबंद करके एक सेक्ट होता था जो फतवाज जारी करते थे। तो उलेमा बेसिकली होते हैं जो मुस्लिम, जैसे मौलवी जो होते हैं ना, उनको उलेमा कहते हैं। जो लर्न स्कॉलर्स होते हैं, जिनको मुस्लिम रिलीजन के बारे में अच्छी जानकारी है, उनको उलेमा कहा जाता था। और पहले जमाने में जब मुस्लिम रूल था, जैसे मुगल्स, पठान्स वगैरह, तो वो बहुत एक्टिव रोल करते थे और राजा के डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी करते थे। Have you heard about a tax called jizya which was levied when the Muslims were in power in India? जजिया एक टैक्स होता था जिसको फिर मुगल में अकबर ने उसको अबॉलिश किया था। जजिया एक टैक्स होता था कि हिंदूज को अगर अपने पिलग्रिमेज में जाना था, पिलग्रिमेज मतलब अगर काशी, वृंदावन, मथुरा कहीं पे भी जाना था, तो उनको वहां जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था। मतलब अपनी तीर्थ यात्रा करने के लिए उनको टैक्स देना पड़ता था। उसको कहते थे जजिया, जिसको बड़ा ही नापसंद करते थे हिंदूज, क्योंकि उनको अपने ही तीर्थ स्थान पर जाने के लिए टैक्स जमा करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। उसको कहते थे जजिया, जिसको अकबर ने 1564 में एबॉलिश कर दिया था। लेकिन जब औरंगजेब पावर में आया था तो उसने फिर से शुरू कर दिया था जजिया। ठीक है। तो अभी ये हो गया। और कुछ अगर आपको पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हो, कुछ टाइम बचा हुआ है। कोई डाउट है आपको तो बताइए। इवन वुमेन ने भी काफी इसमें राइटिंग शुरू कर दी थी, जो लिटरेट थे उन्होंने, क्योंकि वुमेन की हालत बहुत खराब थी। तो
उसमें कुछ लेडीज थी जो लिटरेट थी, तो उन्होंने भी काफी कुछ लिखा ताकि उनकी कंडीशंस लोगों तक पता चले और उसके लिए वो कुछ कर सके। सोसाइटी में जो उनकी कंडीशन थी, खस्ता कंडीशन थी, उसके लिए उन्होंने भी काफी इवन काफी सोशल रिफॉर्मर्स भी एक्टिव थे जिन्होंने काफी कुछ लिखा। हाँ, those were the women who came forward। और सोशल रिफॉर्मर्स का तो था ही, जो वो चेंजेस चाहते थे सोसाइटी में, वो खुल के बताते थे। उस पर उतना ब्रिटिश गवर्नमेंट का उन्होंने उसका ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको उतना कर्व नहीं किया, लेकिन पॉलिटिकल कोई भी राइटिंग होती थी वो आता था अंडर द वर्नाक्युलर एक्ट। तो वहां पे वो किसी भी तरीके का कोई भी विरोध बर्दाश्त नहीं करते थे। बाकी सोशल मैटर्स में वो थोड़े ज्यादा लिबरल थे। इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द abolition of sati as well as the widow remarriage act जो हुए थे। ये इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी सपोर्ट था, तभी ये लॉज पास हुए थे। और जो इन्होंने इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन किया था, तो इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स एटसेट्रा। तो वो चीज जो एजुकेशन फैलाई, उन्होंने एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम को भी रन किया। तो उसको चलाने के लिए द प्रिंटिंग वाज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो वो काफी उसमें काम आया। तो बच्चे फिर बुक्स के थ्रू पढ़ाई कर सकते थे। They introduced a lot of reforms in school education as well as the higher education also. They established universities in the presidency towns। क्या होते हैं presidency towns? प्रेसिडेंसी सिटीज आप बोल दो, चलो टाउन छोड़ दो। प्रेसिडेंसी किसके? हाँ, मगर वो कौन सी जगह थी? There were two types of territories in India जब ब्रिटिश रूल था। एक होता था जहां पे वो इनडायरेक्टली रूल करते थे, वहां पे कोई लोकल राजा होता था मगर जिसका सपोर्ट होता था ब्रिटिश का। वो लोकल अफेयर्स सारे वही मैनेज करता था, मगर उसको डिफेंस फाइनेंस का सपोर्ट मिलता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो वो आता था अंडर द सब्सिडरी सिस्टम। सब्सिडरी सिस्टम एक सिस्टम लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था, जिसमें वो क्या करते थे, वो कहते थे राजा आप राजा करो आप यहाँ पर, मगर हमारी नजर आप पे रहेगी, हमारा रेजिडेंट आपके दरबार में होगा, वो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज पे नजर रखे, कोई बगावत तो नहीं कर रहा, आपके राज्य में क्या चल रहा है। और टैक्सेस हम कलेक्ट करेंगे, राज आप करो, आपकी डिफेंस हम देखेंगे। रूरल को एकदम उन्होंने एक राजा नाम का बना रखा था। वो अपना लोकल जो भी था, मतलब उसको किसी भी चीज का हेडेक नहीं था, ना उसको डिफेंस का हेडेक था, ना उसको टैक्सेस उसको कलेक्ट करके ब्रिटिश को देने थे। और वो बस और वहां पे एक रेजिडेंट भी होता था ब्रिटिश का जो उस पर नजर रखता था, नाम का राजा होता था। उसको कहते थे इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड टेरिटरीज बाय द ब्रिटिश, जहां पर ब्रिटिश का डायरेक्ट राज नहीं होता था। और कुछ एरियाज थे जहां पे डायरेक्ट राज भी होता था, उसमें होते थे प्रेसिडेंसी सिटीज। वो कौन कौन से थे? हाँ नहीं, कई जगह पे इनडायरेक्ट भी था, लेकिन देयर वर सर्टेन टेरिटरीज, जैसे खासकर बिकॉज ब्रिटिश जो आए थे ना, बेसिकली दे हैड कम एज ए बिजनेस पीपल, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था पोर्ट सिटीज। पोर्ट सिटीज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ब्रिटिश से पहले यहाँ पे जो मेजर पोर्ट सिटीज हुआ करती थी इंडिया में, वो थी
नहीं, गोवा तो ठीक है, बट इट वाज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, वो पोर्चुगीज के कंट्रोल में था। करेक्ट। तो जो उनके कंट्रोल में जो सिटीज थी, जैसे बॉम्बे, फिर मद्रास, जिसको आप चेन्नई कहते हो आज की डेट में, और कैलकाटा। और आपको शायद पता होगा कि अंग्रेजों के जमाने में इंडिया की कैपिटल कौन क्या होती थी? कैलकाटा था। कैलकाटा वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर दिल्ली कब बना? वो इंडिपेंडेंस के बाद नहीं बना, उससे पहले बना। कब बना था? Delhi became capital of India in 1911। एक दिल्ली दरबार लगाया गया था वहां पे, और वाइसरॉय को बम भी मारा गया था जब वो एलिफेंट पे जा रहा था। वो ठीक है, बच गए थे। तो कहने का मतलब है कि टिल 1911 कैलकाटा वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया। एंड यही प्रेसिडेंसी सिटीज है, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास वाज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश, क्योंकि बिजनेस सारा यहाँ पे इन पोर्ट्स में होता था। ब्रिटिश से पहले जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे, जब ब्रिटिश की हुकूमत नहीं थी मुगल्स के टाइम में, उस टाइम इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हुआ करते थे सूरत, और सूरत होता था, और एक नाम है उसको पढ़ते, उसको आप बोलते हो मछलीपट्टनम, और हाँ उसको लिखते हैं मसूलीपट्टनम। अगर आप उसको लिखोगे ना मसूलीपट्टनम, बट बोला जाता है मछलीपट्टनम, क्योंकि मछली का बहुत बड़ा बिजनेस उस पोर्ट से होता है। सूरत, मछली, और हुगली भी इम्पोर्टेंट पोर्ट था। फिर हुगली को के बदले बन गया, जब ब्रिटिश आया तो कलकत्ता, सूरत की जगह हो गया बॉम्बे, ठीक है, और आपका मछलीपट्टनम की जगह हो गया मद्रास, जो प्रेसिडेंसी टाउन्स। तो इन प्रेसिडेंसी टाउन्स में 1857 तक उन्होंने यूनिवर्सिटीज भी बना दी थी, एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटीज ही उन्होंने बना दी थी हायर एजुकेशन के लिए। और जो स्कूल एजुकेशन के रिफॉर्म्स थे उन्होंने 1857 के बाद किए थे, एक प्रॉपर रिफॉर्म। तो लॉट ऑफ पब्लिशिंग, लॉट ऑफ प्रिंटिंग वाज इन्वॉल्वड इन ऑल दीस थिंग्स। तो वो सारी चीजें हो रही थी, एंड दे हैड मेंटेनिंग चेक थ्रू लॉज सो दैट नथिंग गोज अगेंस्ट देम, ठीक है। और कुछ है आपको डाउट्स तो बताइए। तो more or less what your strategy should be in the examination, first you should go for the objective type questions। वो पहले करने हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वो पहले आपको करने चाहिए। उसके बाद यू शुड गो फॉर द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, देन यू शुड गो फॉर द मीडियम टाइप क्वेश्चंस, एंड देन यू शुड गो फॉर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। So you should try to score as much as possible in the least time, because it is a lengthy paper, तो you should not run short of time। ऐसा ना हो कि आप डिस्क्रिप्टिव लिखते लिखते आप ऑब्जेक्टिव ही रह गए आपके। कई बार वैसी गलती भी बच्चे करते हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो you should not lose a single mark, you should try your best to get maximum। हाँ, और कई बार आपको there is a possibility which I am telling you, you have got the passage type questions also। तो कई बार आपको उससे कई कुछ questions के answers मिल सकते हैं। So you should be very attentive while doing that passage also। You might find some answer of some question in that passage itself।
तो your strategy should be to get the maximum marks, and you should be stick to the time limits. You should have a rough idea of how many words you can write, you normally write in a single line. So थोड़ा बहुत plus minus तो चल जाता है. It cannot, you don't try to count your words in your answers. It is not practical, or it will not help also. अगर मान लो आपके 8 वर्ड्स आप एवरेज लिखते हो एक लाइन में, तो 80 वर्ड्स का आपके 10 लाइन्स में आ जाता है. मैप्स को आप अच्छे से करो, तो tomorrow if I have a class, then tomorrow I will take up geography and your civics also. So that thing I will take up. But history में अभी हमने किया है, उससे कुछ रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है आपके कोर्स में, you have your books with you. You can, if you want, I can help you. Tomorrow I will take up the geography and civics. कल वो समझ में आया था मैंने जो आपको बताया था इकोनॉमिक्स में, सेक्टर्स वगैरह. मनी क्रेडिट क्या होता है? लोन्स, करेक्ट. तो उसमें हमने देखा था कि देयर आर डिफरेंट प्लेयर्स, ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स. ओके. There's one case study of in Bangladesh. You know Bangladesh is a very backward type of a country, which is having a very high density of population. So there was one person whose name was Muhammad Yunus, who started a bank in Bangladesh. Its name was Grameen Bank. Okay. And his main objective was, because he made a lot of survey within the country and traveled throughout the country. He had got his education from USA. He returned to Bangladesh and he traveled throughout the country. He found that many women in the country want to do something, but they are not able to do because they are not having capital to start any venture. So he encouraged them to form self-help groups in which many women would come together, because individually it was very difficult for him to give a loan to a lady. So he encouraged them to form self-help groups of 10, 20, 25 ladies. So what he did was he started giving loans to them, but very meticulously. मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे बांटता ही फिर गया, but he was very he did a proper study and very slowly he started giving loans to them, and he would monitor their results. अब उसमें क्या हुआ था, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में 20-25 लेडीज होती थी, तो उसमें वो एक दूसरे पे चेक भी करते थे. अगर एक दो लेडीज कहती थी कि अगर हमको नहीं पे करना है, तो बाकी लेडीज उसको कहती थी क्यों नहीं करोगे, हमको आगे कैसे लोन मिलेगा. तो उस तरीके से उन्होंने उसको चलाया, एंड दिस बिकेम ए ह्यूज सक्सेस इन बांग्लादेश, इन व्हिच lakhs of ladies were able to find their livelihood in that country, which is considered to be very poor country, where ladies, and their repayment was very encouraging. Their default was almost was not there. Default, very minimum default was there, and they could do their business. They started their ventures, they started earning, they repaid their loans, and Grameen Bank is a very big bank in Bangladesh now, and he got a Nobel Prize for his effort. This person. तो उसको कई बार बैंक्स देते हैं ऑप्शन कि आप थोड़ा सा, अगर उसका इंटरेस्ट ग्रामीण बैंक में फिर उसमें यही था ना, उसने क्योंकि उसने इंडिविजुअल्स को लोन नहीं दिया था,
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिया था। सपोज कोई पर्सन उसमें था जो नहीं कर पा रहा था, तो उसको उसी के ग्रुप ने हेल्प करके उसको पेमेंट करने में मदद की। फिर बाद में उसने उसको रिपे कर दिया जब उसकी कंडीशन बेटर हो गई। Because he did not give loans to individuals, he gave loans to groups. So groups kept a check and balance on the individuals. So default was almost zero or very minimum as such. So उससे क्या हुआ, that Grameen Bank became very great success, and it was able to give livelihood, and he was very focused. He was giving loans to only ladies, women who wanted to start their enterprise. So handicrafts got improved, the cottage industries got boost. So overall, this led to the development of women, and women have great regard for that person who helped them to start their ventures. Okay. Okay. I think it's enough for today, and tomorrow, if you can tell me, you can speak to sir if he wants to. If you want to have a class tomorrow for civics and geography, then we can go ahead tomorrow for that. Okay. Okay, thank you. You are from which school? Huh? चल। You understood, na, whatever I spoke about? जी जी, थैंक यू। got it, but